वैल्यूएशन ऑफ शेयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ओके, डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक है ये। और क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग शुरू करते हैं। सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर, क्वेश्चन नंबर 18, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, डॉक्टर एस एम शुक्ला। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। The paid up share capital of S Limited consists of 2008% preference shares of 100 each and 10,000 equity shares of 50 rupees each. According to Article of Association, the preference shares are entitled to participate in the surplus profit to the extent of 1 by 10 of profits remaining after payment of 8% dividend ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड 12% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। यानी कि देखिए, जो मेरा लास्ट में प्रॉफिट बचता था इक्विटी शेयर्स के लिए, वो अभी फ़िलहाल हम लोग इक्विटी शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सबसे पहले वो जो सरप्लस अमाउंट आएगी उसमें हम लोग देखिए 1/10 पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को देंगे 8% के डिविडेंड के हिसाब से, और 12% डिविडेंड फिर इक्विटी शेयर्स को बांटेंगे। फिर उसके बाद जो आएगा वो भी पैसा इक्विटी शेयर्स वाले पाएंगे। द बैलेंस प्रॉफिट इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स होल्डर। The average annual profit of the company are 1,86,000 after providing for depreciation and taxation. It is considered necessary to transfer 20,000 per annum to reserve fund. The normal return expected on preference shares is 10% and on equity shares is 12%. यानी कि normal rate of return देखिए preference shares पे 10% है और equity shares पे 12% है। Find out the value of each preference shares and equity shares in the company. Okay, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स that is given here 1,86,000. Okay, and less transfer to reserve fund, that is 20,000 rupees. After subtraction we will get here 1,66,000. Now payment made to preference shares holder. Actually dividend will be paid, so dividend on 8% preference shares. Okay, total preference shares is given here 2,000 and value of each preference shares is 100 rupees and rate of dividend is 8%. Okay, so 0 0 0 0 16,000, and next is that dividend on 12% equity shares. Equity shares is given here 10,000 and value of each equity shares is 50 rupees and rate of dividend on equity shares is given here 12%. So 2 times this goes cancel, 6 यानी कि 60,000. Total amount will be 76,000. So after subtraction of 76,000 from 1,66,000 we will get here 90,000 as surplus here. Okay, and in surplus we will gonna subtract 1/10 of profit remaining. Remaining profit is 90,000 and we will pay extra 1/10 share to preference shares holder. So okay, so 1/10 paid to surplus, paid to preference shares of surplus. Okay, so our surplus is 90,000 and it's 1/10, so it will be 9,000. After subtraction of 9,000 here we will get 81,000 and it is earning available for equity shares holders. That will be 81,000. Okay, so on the behalf of this information we will gonna to calculate the value of preference shares and equity shares. Okay, so first of all we will write here
अर्निंग रेट, अर्निंग रेट जिसको हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड भी कहते हैं. सो अर्निंग रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल इंटू 100. सो अभी देखिए हम लोग इक्विटी शेयर्स की पर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. सो अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी कंसिडर्ड एज, देखिए सबसे पहले आपका इक्विटी शेयर्स होल्डर को 60,000 यहाँ डिविडेंड पे हो रहा था. 60,000 प्लस यहाँ पे देखिए आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, ये भी आपको इक्विटी शेयर्स को ही पेमेंट करनी है. सो 81,000 ये हुआ आपका. और देखिए पेड अप शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स का दे रखा है 5 लाख रुपए. 10,000 टोटल शेयर, 50 रुपये का एक शेयर. सो 5 लाख ये हो गया आपका इंटू 100. सो ये होगा आपका 1,41,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100. सो 123 ये भी आपका गया. तो इसमें इसका डिवाइड दे देते हैं. सो 5 2 जा 10, 5 8 जा एंड 5 2 जा, यानी कि आपका आया 28.2%. ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स. ओके, सो इसका फॉर्मूला देखिए हमारा होता है रेट ऑफ डिविडेंड, जिसको हम लोग अर्निंग रेट भी कहते हैं. सो अर्निंग रेट इनटू पेड अप शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू, अर्निंग रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ओके, सो अर्निंग रेट देखिए हमारा है 28.2. पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स दे रखा है आपका 50 रुपीज़ क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए इक्विटी शेयर्स का है 12%. तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सो 282 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, वी विल गेट हियर रुपीज़ 117.50. दैट मीन्स 117 रुपये 50 पैसे. यह आपका आएगा वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स. अब हम लोग चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का इसी तरह. ओके, यहाँ पे देखिए अब हम लोग सेकंड कैलकुलेट कर ले रहे हैं. रेट ऑफ डिविडेंड या अर्निंग रेट, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स का कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फॉर्मूला वही लगेगा मेरा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोग जब डिविडेंड पे कर रहे थे प्रेफरेंस शेयर्स को, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमने 16,000 उसको पेमेंट की थी. ओके, प्लस 9,000 फिर देखिए उसका 1/10 शेयर्स था. सो 9,000 अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल. तो पेड अप शेयर कैपिटल देखिए 2,000 शेयर्स था प्रेफरेंस शेयर्स का, और एक शेयर्स की वैल्यू 100 रुपीज़ इंटू 100 विल बी कैंसल ऑफ. 25,000 अपॉन 2,000. तो ये देखिए हमारा आएगा 12.5%. अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, तो सेम फार्मूला जो हम लोग उसमें पीछे लगाए थे, रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज गिवन ईयर 12.5 इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स. सो प्रेफरेंस शेयर्स की देखिए पेड अप वैल्यू 100 रुपीज़ है अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और आप देखिए क्वेश्चन में जो प्रेफरेंस शेयर्स पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है. सो 0 विल बी कैंसल, इट विल बी 125 रुपीज़, 125 रुपीज़.
दैट्स इट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिखा हुआ है आपका, देखिए, ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी डिस्क्लोज द फॉलोइंग पोजीशन। ओके, ये कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी हुई है आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। इशूड कैपिटल 10 रुपये वाले 4 लाख, रिजर्व 90,000, PNL, हाँ, PNL 20,000 और करंट लाइबिलिटीज़ 1,30,000। ओके, उसी तरह एसेट्स में देखिए आपका टेंजिबल एसेट्स आपका दे रखा है 4 लाख, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है 40,000 और करंट एसेट्स दे रखा है 2 लाख। नीचे आपसे बोला है द नेट प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर्स वर 2011-12 का प्रॉफिट देखिए 61,600, 12-13 का 62,000 एंड 2013 और 14 का 71,650। तो हमको देखिए इससे अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से बोल रहा है आपसे ऑफ विच 20% वॉज प्लेस टू रिजर्व। फिर जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 20% हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। दिस proportion being considered reasonable in the industry in which the company is engaged and where a fair investment return may be taken as 12%. So okay, so normal rate of return is 12%. So compute the value of company shares by yield method. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो इसमें भी देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। सो एवरेज प्रॉफिट, ओके, तो देखिए 3 साल का प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 61,600 प्लस 62,000 प्लस 71,650। 3 साल का प्रॉफिट है, 3 से डिवाइड लगा देते हैं हम लोग। सो आवर एवरेज प्रॉफिट विल बी 61,600 प्लस 62,000 प्लस 71,650। टोटल हुआ आपका 1,95,250। इसमें 3 का डिवाइड लगाएंगे, सो वी विल गेट हियर 65,083 अप्रॉक्स। ओके, अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व और रिजर्व। सो देखिए जो भी मेरा प्रॉफिट है उसका 20% ट्रांसफ़र करने को क्वेश्चन में बोल रहा था, तो 65,083 का 20%। ओके, सो ये आएगा आपका 13,017 अप्रॉक्स। ओके, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 13 में से 7 गया 6, 7 में से 1 गया 6, और ये आपका 0, 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 1 गया 5। ओके, ये आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चंस में दिया नहीं हुआ है, तो जो भी पैसा बच रहा है वो सारा का सारा पैसा कौन पाएगा? इक्विटी शेयर्स होल्डर। सो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। ओके, सो 52,066 ये आपका इक्विटी शेयर्स वाले पाएंगे एज अ डिविडेंड। ओके, तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड हमारा। सो रेट ऑफ डिविडेंड फॉर्मूला वही पुराना वाला ही हम लोग लगाएंगे। अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो देखिए कितना अमाउंट हमको पेमेंट करना है एज अ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स होल्डर, 52,066 अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल। तो देखिए इक्विटी शेयर्स की पेड अप शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है, इनटू 100। ओके, सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सो 52,066 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 लाख, हमारा यहाँ पे आएगा 13.0165%। ओके, अब इससे हम लोग अपना अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर या ईच इक्विटी शेयर्स। ओके,
तो इसका फॉर्मूला देखिए होता है रेट ऑफ डिविडेंड। सो रेट ऑफ डिविडेंड देखिए हमारा यहाँ कितना आया है 13.0165 इंटू पेडअप पेडअप वैल्यू ऑफ शेयर। सो देखिए इक्विटी शेयर्स की पेडअप वैल्यू 10 रुपये थी अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ गिवन ईयर 12। ये जो फॉर्मूला है ये क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए अभी तुरंत मैंने कराया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10 रुपये 85 पैसे अप्रॉक्स। ओके, 10 रुपीज़ 85 पैसे, ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी लिमिटेड हैज़ इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। ओके, 90 रुपीज़ पेड, यानी कि देखिए 100 रुपीज़ का शेयर है लेकिन पेड अभी 90 रुपीज़ ही हुआ है। आगे पढ़ते हैं, बोला है आगे 310% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड फुल्ली पेड। इस पर 100 का 100 पूरा हमको मिल चुका है। द कंपनी हैज़ अ प्रैक्टिस ट्रांसफरिंग 20% ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर। जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका 20% हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। द एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज़ 80,000 बिफोर टैक्स एंड द रेट ऑफ टैक्स इज़ 20%। अब देखिए 80,000 रुपये मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, और ये बिफोर टैक्स है, तो हम पहले सब टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद से जो अमाउंट आएगा उसका 20% हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स इज 80%। ओके, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000 रुपये हमारा दिया हुआ है, लेस टैक्स। टैक्स आपको देखिए 25% के हिसाब से देना है, तो 80,000 का 25%, तो ये आपका आएगा 20,000 रुपये। तो ये आया अमाउंट 60,000। ये आपका आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अब इसमें से हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे जनरल रिजर्व को। सो लेस ट्रांसफ़र टू रिजर्व। सो देखिए क्वेश्चन में बोला 20% आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट का, तो 60,000 का 20%, तो ये आया आपका 12,000। रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद देखिए जो आपकी वैल्यू बची वो बची 48,000। इसके बाद से हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करेंगे। सो लेस डिविडेंड ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए टोटल प्रेफरेंस शेयर्स आपके 300 थे, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी और रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। ओके, सो ये आपका गया, ये आया टोटल आपका 3,000 रुपये। अब जो अमाउंट बचेगा वो पूरा का पूरा पाएंगे आपके इक्विटी शेयर्स होल्डर। सो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड देखिए उसी तरह कैलकुलेट होगा हमारा अमाउंट ऑफ डिविडेंड, दैट मीन्स जो इक्विटी शेयर्स होल्डर को पैसा मिलने वाला है वो। सो 45,000 इंटू 100 अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स का देखिए जो टोटल कैपिटल है वो आपका है 2,000 और एक शेयर के पे देखिए 90 रुपीज़ पेडअप है। सो पेडअप। ओके, सो 1 2 3 1 2 3 2 से इसे काटें 50 बार भी गया, फिर 0 से 0 ये भी कैंसिल, 9 5 45, यानी कि ये देखिए आया आपका 5 इंटू 5 25%। ओके, सो अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ
ईच इक्विटी शेयर्स, तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, रेट ऑफ डिविडेंड 25% इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो एक इक्विटी शेयर्स की देखिए पेड अप वैल्यू 90 रुपये थी, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 18% के हिसाब से दिया हुआ है 5, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 125 रुपये। ओके, फॉर्मूला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने इन सब का लिखा हुआ है, तो आप वहीं से देख सकते हैं। सो इसका आंसर आ गया 125 रुपये। दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, तो देखिए इसको पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय लिमिटेड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स। ओके, 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच, 8 रुपीज़ पेडअप है, तो पेडअप वैल्यू ही कंसीडर की जाती है 4 लाख रुपए। 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 2 लाख रुपए, ट्रांसफर टू रिजर्व 20% ऑफ करंट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 6 लाख एंड rate of taxation is 25% and normal rate of return is 15%। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिए मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ ऑलरेडी करा चुका हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो देखिए अगर ध्यान से आप, तो सिमिलरली एकदम सेम टू सेम इसी तरह का है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा वो आपका होमवर्क होगा, तो आप लोग सॉल्व करके, जो भी इस वीडियो को देखेगा तो उसको सॉल्व करके मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे मेरे को सेंड करेगा। ओके, एंड प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फ्रेंड्स के साथ भी अपने शेयर कर दिया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ लाइक माय वीडियोज़ टू। ओके।